Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe and healthy. Today we are going to cover up section number 181, 182 and 183. In the last video we covered section number 179 and 180 which were related to powers of the board and the restrictions on the power of board. Today we are going to cover up the contributions which are made by the company either to the charitable fund or to the political party or to the National Defence Fund. What are the restrictions on these contributions, what is allowed, to what extent it is allowed, how it is allowed, that all these questions we are going to cover up in today's video. So you can refer to the description box below for the notes which I am going to refer. The notes are basically from the institute's study material. You can open up the page number 3.35 of the module if you have the hard copy, or just refer to the description box and get the notes from there. Okay, let's start with the video. Company to contribute to bona fide and charitable funds etc. Section 181. Section 181 is relating to contribution to bona fide and charitable funds. Okay. So, let us start with it. Section 181 of the Act applicable to both public and private companies. So, mind this is applicable to both the companies, either public or private. It does not matter if you are a private company, there is no exemption to the private company in this section. Okay. So, this section is applicable to both public and private companies. It empowers the board of directors to contribute to bona fide charitable and other funds up to a particular limit. There is a limit which is defined in this section. Up to that limit you can contribute to the bona fide charitable and other funds. Who can contribute? किसको power दी है? Power is given to the board of directors. Okay. Now you can contribute to the bona fide charitable and other funds up to a particular limit which if exceeded needs to be permitted by the company through passing an ordinary resolution. Special resolution नहीं लिखा, ordinary resolution लिखा है, मतलब जनरल मीटिंग का ordinary resolution would be required अगर आप जो सेक्शन में लिमिट मेंशन्ड है उस लिमिट से ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन करते हो. ठीक है. सो अगर अप टू द लिमिट यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग तो सिर्फ बोर्ड मीटिंग के रेजोल्यूशन से काम चल जाएगा, लेकिन अगर लिमिट से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करोगे तो यू विल रिक्वायर जनरल मीटिंग का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एज वेल. ठीक है. Now what is the limit? Limit on contribution by the board of directors. The board is empowered to contribute any amount in any financial year if the aggregate amount of such contribution does not exceed 5% of the average net profits of the company for the 3 immediately preceding financial years. मतलब अगर आप financial year 1920 में कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो फाइनेंशियल ईयर 1920 से जस्ट 3 साल पहले, मतलब 18-19, 17-18 एंड 16-17, 16-17, 17-18 एंड 18-19 फाइनेंशियल ईयर्स के नेट प्रॉफिट्स को ले लो. ठीक है. उन सभी नेट प्रॉफिट्स का एवरेज कर दो. अब देखो ये जो एवरेज नेट प्रॉफिट्स हैं इसका जो 5% है, क्या वो एवरेज नेट प्रॉफिट्स का 5% आपका कंट्रीब्यूशन अमाउंट से ज़्यादा है या कम है? अगर कंट्रीब्यूशन आप इस 5% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट से ज़्यादा का करते हो तो उस केस में आपको जनरल मीटिंग का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लगेगा अलॉन्ग विद द बोर्ड मीटिंग का रेजोल्यूशन. ठीक है. लेकिन अगर आप अप टू 5% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी फॉर 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स तक करते हो, देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट फॉर जनरल मीटिंग का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन. आई होप दिस इज़ क्लियर. तो लिमिट क्या हो गई? लिमिट ये हो गई कि सबसे पहले जिस फाइनेंशियल ईयर में कंट्रीब्यूट कर रहे हो उस ईयर्स के नेट प्रॉफिट ले लो, नेट प्रॉफिट को एवरेज करो, उस एवरेज का 5% निकालो. अब देखो कि क्या कंट्रीब्यूशन 5% तक की लिमिट तक है या नहीं है तो बहुत बढ़िया है, बोर्ड मीटिंग का रेजोल्यूशन विल वर्क आउट. लेकिन अगर उससे एक्सीड कर जाता है देन इन दैट केस यू विल रिक्वायर दी जनरल मीटिंग का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन. आई होप यू आर क्लियर विद दिस. ओके. नेक्स्ट आता है वेयर द अबव लिमिट इज एक्सीडेड. अब अगर ये लिमिट एक्सीड हो जाती है, in case the aggregate contribution amount in any financial year is beyond the limit specified for the board,
मतलब जो ऊपर लिमिट है वो किसके लिए है, बोर्ड के लिए लिमिट है कि बोर्ड इतने तक का अमाउंट तो कंट्रीब्यूट कर सकता है, ठीक है। सो अगर ये जो कंट्रीब्यूशन है वो किसी भी फाइनेंशियल ईयर में इस लिमिट से ज़्यादा हो जाता है, कौन सी लिमिट, जो बोर्ड के लिए प्रेस्क्राइब्ड है, प्रायर परमिशन ऑफ द कंपनी इन द जनरल मीटिंग शैल बी रिक्वायर्ड फॉर सच कंट्रीब्यूशन। मतलब वही बात आ गई कि जनरल मीटिंग का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए होगा अगर क्या हो जाती है लिमिट जो बोर्ड के लिए प्रिस्क्राइब्ड है वो एक्सीड कर जाती है। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। ये सेम वही चीज़ लिखी हुई है जो हमने ऊपर से ही इंटरप्रेट कर ली थी। The expression other funds is wide enough to enable contributions of the kind specified in the special resolution to be made by the company. So other funds जैसे लिखा हुआ है ना यहाँ पर कि other funds में भी आप contribute कर सकते हो, तो ये जो other funds वाला term है ये काफ़ी wide है। इसकी वजह से क्या होता है, अगर कंपनी कोई भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवा लेती है तो उस केस में आप contributions कर सकते हो। So the expression other funds is wide enough to enable the contributions of the kind specified in the special resolution to be made by the company. अगर किसी other funds में contribute करना चाहते हो तो कंपनी का special resolution ले आओ और उसमें लिखवा दो कि कौन सा other fund की आप बात कर रहे हो, तो आप कर सकते हो, there is no problem. Okay? Now there is one example given on this page, but I'll read this for you, I'll read the answer also, but according to me there is some mistake in this question. In case I am wrong with this perception कि ये question में solution गलत दिया हुआ है तो do correct me by commenting below or contacting me directly. आप किसी भी तरह से मुझे भी inform करना अगर मैं गलत आपको interpret करके बताती हूँ। मेरी interpretation के हिसाब से this solution is wrong. I have checked it in a lot of scanners also फ्रॉम डिफरेंट टीचर्स, सब में वही व्यू लिया हुआ है जो मैं आपको अभी इसके साथ सोल्यूशन पढ़ने के बाद बताऊंगी, पर स्टडी मटेरियल में कुछ अलग चीज़ लिखी हुई है। अगर आपको इस चीज़ का लॉजिक पता है और आपको लगता है कि जो मैं भी बताने वाली हूँ वो गलत है तो प्लीज़ करेक्ट मी ऑल्सो, इट विल बेनिफिट मी एज वेल एज अ लॉट ऑफ पीपल हु विल बी रेफरिंग टू दिस वीडियो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द एग्जाम्पल। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ वेरी वेल लिमिटेड is contributing every year to a charitable organization a sum of ₹60,000। जो वेरी वेल लिमिटेड कंपनी है उसकी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो हर साल चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में 60,000 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। In a particular year, the company suffered losses and the directors are contemplating to contribute the said amount in spite of the losses। किसी साल में क्या हुआ, कंपनी ने लॉसेस सफ़र किए और जो डायरेक्टर्स हैं वो कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं टू कंट्रीब्यूट द सेट अमाउंट इन स्पाइट ऑफ द लॉसेस। तो करंट फाइनेंशियल ईयर में जिस साल में वो क्या करना चाहते हैं, कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, उस साल कंपनी को लॉसेस हो गए। इन दिस कनेक्शन स्टेट वेदर द डायरेक्टर्स कैन डू द कॉन्ट्रीब्यूशन और नॉट। तो इस अगर करंट ईयर में लॉसेस भी हो जाते हैं तो क्या डायरेक्टर्स जो हैं वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ आ गया होगा, ये हमसे पूछ रहे हैं सेक्शन 181 क्योंकि कंट्रीब्यूशन टू चैरिटेबल ट्रस्ट की बात की हुई है, ठीक है। तो अब इस केस में जो लिखा है ना कि कंपनी जिस साल में कंट्रीब्यूट करने वाली है उस साल में क्या हो जाते हैं, लॉसेज हो जाते हैं। अब एक बात बताओ, सेक्शन 181 के अंदर क्या ये लिखा है कि अगर करंट ईयर में ऐसा हो गया तो आप इस लिमिट तक नहीं पे कर पाओगे, नहीं ना। उसमें तो जो लिमिट प्रिस्क्राइब की गई है वो पिछले 3 साल के नेट प्रॉफिट्स को लेके की हुई है, उसमें इस साल के प्रॉफिट इंक्लूड करने हैं ऐसा तो कहीं लिखा ही नहीं है। तो इस साल अगर कंपनी को लॉसेस हो भी गए तो क्या फ़र्क पड़ता है, कंपनी अगर पे कर सकती है तो वो पे करेगी ना, करंट ईयर का तो कोई रेलेवेंस ही नहीं आना चाहिए। बट अगर आप सोल्यूशन पढ़ोगे तो देयर इज़ अ डिफरेंस। सो लेट्स सी द आंसर ऑल्सो, देन विल हैव अ डिस्कशन। मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी और अगर मैं गलत हूँ तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर एक्सप्लेन कीजिएगा, ठीक है। आंसर की बात करते हैं। अंडर सेक्शन 181 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी इज ऑथराइज्ड टू कंट्रीब्यूट टू बोनाफाइड चैरिटेबल एंड अदर फंड्स। अग्रीड। However, in case the aggregate amount of such contribution in any financial year exceeds 5% of its average net profits for the 3 immediately preceding financial years, prior permission of the company in the general meeting shall be required. Correct है बिल्कुल। Now, the section does not make it mandatory for the company to have a profit for making a charitable contribution in any financial year. सही लिखा है कि कोई ज़रूरत नहीं है, कोई मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है कि प्रॉफिट ही होना चाहिए जिस साल में आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हो। एज द अमाउंट ऑफ डोनेशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू द एवरेज ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग
preceding or previous 3 years profit, it is possible for a company suffering a loss to make contribution provided it is made to a bona fide charitable fund and the average of the 3 immediately preceding financial years profits is positive. ये भी ठीक था, लेकिन यहाँ पर जो ब्रैकेट में दे दिया ना उससे मुझे प्रॉब्लम हुई. क्या प्रॉब्लम हुई? इसमें लिखा है इंक्लूडिंग करंट लॉसेस, बट वाई करंट लॉसेस इज गिवन हियर, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट. ठीक है. नेक्स्ट, in the present case, even though the company has incurred a loss, it can contribute to the charitable funds only if it is a bona fide charitable fund, correct है, and the amount is up to 5% of the average of the immediately preceding 3 years profits including current losses. Then again this bracket is a problem for me. In case the contribution exceeds the limit, the prior approval of the members must be taken at a general meeting of the company. I agree with the solution completely except with the brackets given in para 2 and 3. Including current losses वाली लाइन से मुझे दिक्कत है, मुझे वो चीज़ समझ आई कि क्यों दिया हुआ है. अकॉर्डिंग टू मी करंट ईयर के लॉसेस नहीं देखने चाहिए थे. अगर कंपनी के पास फंड्स हैं प्लस उसकी जो लिमिट है वो क्रॉस नहीं कर रही, मतलब 5% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट्स ऑफ द 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स इज़ पॉजिटिव एंड द कंट्रीब्यूशन का अमाउंट इज़ ऑल्सो अप टू दैट लिमिट, प्लस कंपनी के पास फंड्स हैं, प्लस जो चैरिटेबल फंड जहाँ पर वो कंट्रीब्यूट कर रही है वो बोनाफाइड है, तो देयर शुड बी नो प्रॉब्लम. करंट ईयर के लॉसेस शुड नॉट अफेक्ट दिस. और करंट ईयर के लॉसेस को हमें ऐड लेस भी नहीं करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी. ठीक है. प्लीज़ डू लेट मी नो अबाउट दिस. अगर आपको ये सही लग रहा है जो मैं बोल रही हूँ वो, और अगर कुछ गलती लग रही है तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा. ठीक है. ओके. Now this section is over for us. This is section 181 which was related to contribution to the charitable funds, bona fide charitable funds or other funds. Okay. So let's start with the next section which is section number 182. Prohibitions and restrictions regarding political contributions. Prohibitions, restrictions regarding political contribution. Political contributions कर सकते हो लेकिन there are some prohibitions and some restrictions regarding that. किस section में दी है? section 182 में दी हुई है. Section 182 of the Act deals with the provisions relating to prohibitions and restrictions regarding the political contributions. These provisions are stated as under. Section 182 के अंदर provisions दे रखे हैं. Okay, क्या provisions हैं? Contribution by a company to political parties. A company is permitted to contribute any amount without any limit. Permission है, किसी कोई limit नहीं है, कितना मर्जी भी contribute कर लो, चाहे डायरेक्टली कर लो चाहे इनडायरेक्टली कर लो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, notwithstanding anything contained in any other provisions of the Companies Act 2013, it is to be noted that section 182 subsection 1 has an overriding effect. किसी भी सेक्शन में पूरे एक्ट में कहीं भी कुछ भी दिया हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता. सेक्शन 182 स्पेसिफिक सेक्शन है, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड. आप किसी भी लिमिट तक कैसे भी डायरेक्टली दे रहे हो पॉलिटिकल पार्टी को, इनडायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टी को ही उस पैसे का फ़ायदा हो रहा है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप किसी भी लिमिट तक कर सकते हो. अब पॉलिटिकल पार्टी का मतलब क्या है? तो पॉलिटिकल पार्टी का जो मतलब है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 29A के अंदर बताया हुआ है. तो वो तो अब हम यहाँ नहीं पढ़ने वाले, हम तो कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं, बट ये डेफिनेशन कहाँ दी हुई है? सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 में दी हुई है. ओके. नेक्स्ट, कंपनी इज़ नॉट अलाउड टू कंट्रीब्यूट पॉलिटिकल पार्टीज़. पहले बताया कंपनी कर सकती है, कोई लिमिट नहीं है, फिर बता रहे हैं अब ऐसी कौन सी कंपनीज़ हैं जो नहीं कर सकती. तो कौन सी कंपनी पार्टी को नहीं कर सकती? द फॉलोइंग कंपनीज आर नॉट अलाउड टू कंट्रीब्यूट टू एनी पॉलिटिकल पार्टी. कौन कौन? गवर्नमेंट कंपनी एंड अ कंपनी विच हैज़ बीन इन एग्जिस्टेंस फॉर लेस दैन 3 फाइनेंशियल ईयर्स. सो एक गवर्नमेंट कंपनी कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती एंड एक कंपनी जिसकी एग्जिस्टेंस अभी 3 साल तक की भी नहीं हुई, मतलब लेस दैन 3 ईयर्स है. 3 फाइनेंशियल ईयर्स के लिए अगर एग्जिस्टेंस हो गई है तो कर सकते हो. 3 ईयर्स से कम के लिए एग्जिस्टेंस है तो उस केस में आप पॉलिटिकल पार्टीज़ को कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते. तो गवर्नमेंट कंपनी नहीं कर सकती, और कौन नहीं कर सकता? वो कंपनीज जिनका अभी तक 3 फाइनेंशियल ईयर्स भी नहीं हुए इनकॉर्पोरेट हुए वे, एग्जिस्टेंस में आए हुए. ठीक है.
नेक्स्ट, प्रोसीजर फॉर मेकिंग कंट्रीब्यूशन, ये एग्जाम्पशन को याद रखना, ये कंपनीज जो नहीं अलाउड हैं टू कंट्रीब्यूट पॉलिटिकल पार्टीज को याद रखना, क्योंकि क्वेश्चंस में आपको ये चीज़ मिल सकती है कि कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ था इस दिन और 2 साल बाद 1 साल बाद कंपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ को कंट्रीब्यूट करना चाहती है, तो क्या वो कर सकती है? आपको लगेगा हाँ बिल्कुल कोई लिमिट नहीं है, ये वो सब आप प्रोविजंस चेक कर लोगे और आपको लगेगा हाँ कर सकती है। लेकिन अगर आप ये वाला पॉइंट भूल गए कि ये वाली कंपनी तो कर ही नहीं सकती क्योंकि इसकी एग्जिस्टेंस अभी 3 फाइनेंशियल ईयर्स की भी नहीं हुई है, तो उस केस में वो आंसर आपका गलत हो सकता है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पशन वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रोसीजर फॉर मेकिंग कंट्रीब्यूशन, a company shall make the contribution to a political party only after a resolution authorizing the making of such contribution is passed at a meeting। तो कंपनी कंट्रीब्यूशन कब कर सकती है पॉलिटिकल पार्टी को? तभी जब इस चीज़ के लिए रेजोल्यूशन पास हुआ हो। कहाँ पर? बोर्ड मीटिंग के अंदर। बोर्ड मीटिंग का रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड टू मेक द कंट्रीब्यूशन टू द पॉलिटिकल पार्टी। In effect, such resolution shall be deemed to be the justification in law for making the contribution authorized by it। तो authorization to contribute कौन देगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देंगे इन दी बोर्ड मीटिंग। ठीक है, नेक्स्ट, डीम्ड पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस, सेक्शन 182 सबसेक्शन 2। अब इसको करने से पहले अगर मैं प्रोविज़ो की ही बात करूँ, जो जस्ट हमने अभी पढ़ा कि बोर्ड मीटिंग का रेजोल्यूशन चाहिए, तो उसमें आपने एक चीज़ नोटिस करी, तो उसमें लिखा है कि ऑथराइज़ किया जाएगा कंट्रीब्यूशन को किस रेजोल्यूशन के थ्रू? वो रेजोल्यूशन जो पास हो रहा है एट अ मीटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मीटिंग में पास हो रहा है वही वाला रेजोल्यूशन। मतलब हमने जो रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन पढ़ा था, क्या आप वो वाला रेजोल्यूशन पास करके पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशंस कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर लिखा है इट शुड बी पास्ड एट अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड। मीटिंग ऑफ द बोर्ड का मतलब मीटिंग होगी तो पास हो सकता है, विदाउट मीटिंग इट कैन नॉट बी पास। तो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। Okay, next, deemed political contributions, section 182 subsection 2। In addition to making any direct contribution to a political party, following contributions are also deemed as political contributions। direct contributions के अलावा भी अगर आप इस तरीके के contribution करते हो तो माना जाएगा कि वो भी political contributions ही हैं। deeming provision है। क्या प्रोविजन है? A donation or subscription or payment given by a company to a person who, to its knowledge, is carrying on any activity which at the time at which such donation or subscription or payment was given can reasonably be regarded as likely to affect the public support for a political party। क्या किया है आपने? डोनेशन दिया है, सब्सक्रिप्शन दिया है या कोई भी पेमेंट दी है किसी भी पर्सन को, टू इट्स नॉलेज इज़ कैरिंग ऑन एनी एक्टिविटी। आपकी नॉलेज में क्या है कि वो बंदा कोई ऐसी एक्टिविटी कैरी ऑन कर रहा है जिस टाइम पर आप डोनेशन या फिर सब्सक्रिप्शन या पेमेंट दे रहे हो, कैसी एक्टिविटी कर रहा है जिसकी वजह से पब्लिक सपोर्ट। तो बेसिकली काम तो पॉलिटिकल पार्टी का ही हो रहा है। अगर ऐसा कोई बंदा जो पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट के लिए ही कुछ काम कर रहा है और उसको आप कोई भी डोनेशन सब्सक्रिप्शन पेमेंट देते हो, तो माना जाएगा कि आपने पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन ही किया, क्योंकि एक तरीके से इनडायरेक्ट पेमेंट हो गया ये। इनडायरेक्टली यू आर गिविंग द बेनिफिट टू द पॉलिटिकल पार्टी, सो डीम्ड है कि आपने पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन किया है। दूसरा पॉइंट, द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर incurred directly or indirectly by a company। amount of expenditure incurred directly or indirectly by a company on an advertisement in any publication being in the nature of a souvenir, brochure, tract, pamphlet or the like, where such publication is by or on behalf of a political party and where such publication is not by or on behalf of but for the advantage of a political party। ठीक है, तो पहला लिखा है कि आपने क्या किया है, कोई भी एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया है, या तो खुद से या किसी के थ्रू करवाया है। ठीक है, किस तरीके का एक्सपेंडिचर? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर करवाया। किस चीज़ की एडवर्टाइजमेंट? आपने किसी पब्लिकेशन में एडवर्टाइजमेंट करवाई है। किस तरीके की? सॉवरनर के थ्रू, ब्रोशर्स के थ्रू, ट्रैक्ट्स या पैम्फलेट्स बंटवाए हैं, जो कि इस पब्लिकेशन से किसके बिहाफ पर किया है? आपने पॉलिटिकल पार्टी के बिहाफ पर। पॉलिटिकल पार्टी को ये सब चीज़ें करनी थी, अपनी एडवर्टाइजमेंट करनी थी, अपने ब्रोशर, सॉवरनर, ट्रैक्ट्स, पैम्फलेट्स बंटवाने थे
आपने उसके लिए एक्सपेंडिचर इनकर कर दिया, किसके लिए, पॉलिटिकल पार्टी के लिए, तो इस केस में क्या माना जाएगा कि डीम्ड है कि आपने पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूशन दिया है, क्योंकि अगर आप पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूशन देते तो वो भी खर्चा करती, अब आपने उसके बिहाफ पे खर्चा कर दिया तो माना जाएगा ना कि वही खर्चा है, जो वही कंट्रीब्यूशन है जो आप उसको दे रहे हो। या फिर ये पब्लिकेशन जो है पॉलिटिकल पार्टी के फ़ायदे के लिए है, एडवांटेज के लिए है, उस केस में भी माना जाएगा कि डीम्ड पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशंस हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, डिस्क्लोजर ऑफ कंट्रीब्यूटेड अमाउंट, सेक्शन 182 सबसेक्शन 3। जो भी अमाउंट आपने कंट्रीब्यूट किया है उस चीज़ का डिस्क्लोजर। एवरी कंपनी शैल डिस्क्लोज इन इट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट द टोटल अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय इट अंडर सेक्शन 182 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर टू विच द अकाउंट्स रिलेट। कहाँ पर कंट्रीब्यूशन का डिस्क्लोजर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करना है। नेक्स्ट, मोड्स ऑफ कंट्रीब्यूशन, मोड्स ऑफ कंट्रीब्यूशन सेक्शन 182 सबसेक्शन 3A, किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हो वो बताया हुआ है। सो द कंट्रीब्यूशन टू अ पॉलिटिकल पार्टी अंडर सेक्शन 182 शैल बी मेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग मोड्स, क्या क्या, अकाउंट पे चेक, ड्रॉन ऑन अ बैंक, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट, या फिर यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू अ बैंक अकाउंट। इसको पढ़ के आपको ज़रूर डायरेक्ट टैक्सेशन की याद आ गई होगी। अगर आपने डायरेक्ट टैक्सेस की क्लासेस ले रखी हैं या खुद से पढ़ा हुआ है किसी भी तरह से, अगर आपने डायरेक्ट टैक्सेस पढ़ा हुआ है और आपने टैक्सेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ या टैक्सेशन ऑफ इलेक्टोरल ट्रस्ट पढ़ा है तो उसके अंदर भी ये चीज़ें मेंशन्ड है कि किस तरीके से कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, तो क्या टैक्सेबिलिटी होगी वगैरह वगैरह। तो वही चीज़ यहाँ पर भी मोड्स बता रखे हैं, अगर आपको याद है तो आपको ईजी हो जाएगा याद करने में। आई एम जस्ट गिविंग अ रेफरेंस, दैट इज़ वाई। ठीक है, अब अकाउंट पे चेक, ड्रॉन ऑन अ बैंक अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट, या फिर यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू अ बैंक अकाउंट, या फिर आपने किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट के थ्रू किया है जो किसी स्कीम की वजह से इशू हुआ था, notified under any law for the time being in force for contribution to the political parties। political parties को contribute करने के लिए कोई ऐसी स्कीम नोटिफाई हुई थी किसी लॉ के तहत, और उसमें क्या है, कोई इंस्ट्रूमेंट है, उस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आप इनडायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टीज़ को कंट्रीब्यूट कर रहे हो। अब ये इंस्ट्रूमेंट्स और स्कीम वगैरह क्या है, तो ये इलेक्टोरल ट्रस्ट कंपनीज़ की बात कर रहे हैं कि कंपनी ने इलेक्टोरल ट्रस्ट कंपनीज़ को कंट्रीब्यूशन दिया, फिर इलेक्टोरल ट्रस्ट कंपनीज़ ने फर्दर पॉलिटिकल पार्टीज़ को वो कंट्रीब्यूशन दिया। ये यहाँ पर नाम अनोनिमस रखने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये इस वजह से होता है। तो ये हमारे हो गए मोड्स, क्या क्या, अकाउंट पे चेक, ड्रॉन ऑन बैंक, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट, यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू बैंक अकाउंट, या फिर थ्रू एनी इंस्ट्रूमेंट जिसको आप इलेक्टोरल ट्रस्ट कंपनीज़ के थ्रू याद रख सकते हो। आई होप यू आर विद मी टिल हियर। नेक्स्ट, punishment for contravention. If a company makes any contribution in contravention of provisions of section 182, the punishment shall be as under। ये punishment कितनी है, फाइन अप टू 5 times the amount of contribution so made। जितना भी contribution अगर आपने कोई भी contravention करी, ठीक है, बोर्ड मीटिंग का रेजोल्यूशन पास नहीं करा मीटिंग के अंदर, या फिर आपने जिसको अलाउड नहीं था, गवर्नमेंट कंपनी या फिर जिसकी एग्जिस्टेंस अभी 3 साल तक नहीं हुई है, उन कंपनीज़ ने कंट्रीब्यूशन कर दिया, तो वो कंपनीज़ कॉन्ट्रावेंशन कर रही है सेक्शन 182 का। ठीक है, तो इस केस में, या फिर जो मोड्स ऑफ कंट्रीब्यूशन थे आपने उस मोड में नहीं किया, कैश में दे रहे हो, ठीक है, या डिस्क्लोजर करने की रिक्वायरमेंट है वो नहीं की, तो ये सभी कॉन्ट्रावेंशन हो जाएंगी सेक्शन की 182 की। तो उस केस में पनिशमेंट किसके लिए, कंपनी के लिए कितनी, जितना भी कंट्रीब्यूशन किया उसका 5 times तक हो सकती है, पनिशमेंट तक हो सकती है का मतलब है कम भी हो सकती है, राइट। नेक्स्ट, एवरी डिफॉल्टिंग ऑफिसर पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 months एंड विद फाइन अप टू 5 times द अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन सो मेड। सो डिफॉल्टिंग ऑफिसर की बात करें तो इम्प्रिजनमेंट होगी कब तक, अप टू 6 months एंड विद फाइन अप टू 5 times द अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन सो मेड। तो जेल कितने टाइम तक की हो सकती है, 6 महीने की, और साथ ही साथ फाइन अप टू 5 times। मतलब यहाँ पर और वर्ड नहीं लिखा, एंड वर्ड लिखा है, मतलब जेल भी होगी और साथ साथ फाइन भी लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट, The MCA writes general circular dated so and so issued a clarification on disclosure under section 182 subsection 3। जो हमने पढ़ा था कि PL में डिस्क्लोज करना होता है while making the contributions to electoral trust। जब आप electoral trust को contribute कर रहे होते हो ना, तो उसके लिए कुछ clarification है disclosures पर कि किस तरीके से disclosure करना है। So according to the circular, with the coming into force of the scheme relating to electoral trust companies under section 2 clause 22AA,
The Income Tax Act 1961 read with Ministry of Finance notification number so and so dated so and so, it will be expedient to explain the requirements of disclosure on part of the company of any amount or amounts contributed by it to any political parties under section 182 subsection 3 of the Companies Act. The ministry hereby clarifies that companies contributing any amount or amounts to an electoral trust company for contributing to a political party or parties are not required to make disclosures required under section 182 subsection 3 of the Companies Act. It will suffice if the accounts of the company disclose the amount released to an electoral trust company. तो आपको पीएल में डिस्क्लोज करने की रिक्वायरमेंट नहीं कह रहे कि आपने किसको डिस्क्लोजर किया है, किसको कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को पेमेंट किया है, बट आपको सिर्फ अकाउंट्स में ये मेंशन करना होगा कि मैंने ये अमाउंट इलेक्टोरल ट्रस्ट कंपनी को दिया है. मतलब आपको पॉलिटिकल पार्टी का नाम मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होगी अगर आप किसी इलेक्टोरल ट्रस्ट कंपनी के थ्रू कंट्रीब्यूशन कराते हो. ये इनकम टैक्स के हिसाब से भी अलाइंड है. ठीक है. नेक्स्ट, कंपनीज कॉन्ट्रीब्यूटिंग एनी अमाउंट और अमाउंट्स directly to a political party or parties will be required to make the disclosures laid down in section 182 subsection 3 of the Companies Act 2013. तो अगर डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो आपको 182 सबसेक्शन 3 लग जाएगा. इलेक्टोरल ट्रस्ट के थ्रू करते हो तो सिर्फ आपको अकाउंट्स में मेंशन करना है कि हमने इतना अमाउंट रिलीज किया है टू एन इलेक्टोरल ट्रस्ट. Electoral trust companies will be required to disclose all the amounts received by them from other companies sources in their books of accounts and also disclose the amount or amounts contributed by them to a political party or parties as required by section 182 subsection 3 of the Companies Act 2013. So electoral trust companies को क्या करना पड़ेगा, उनको सारे के सारे अमाउंट्स जो भी उनको ड्यूरिंग उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाना पड़ेगा. कंट्रीब्यूशन के अमाउंट्स मिल रहे हों या किसी और सोर्स, मतलब जो कंट्रीब्यूशन का अमाउंट मिला उसमें से अगर उन्होंने कुछ इन्वेस्ट किया तो उस सोर्स से भी उनको अमाउंट मिल सकता है. तो उस अमाउंट का भी डिस्क्लोजर करना है. किसी कंपनी से बिकॉज ऑफ द कंट्रीब्यूशन अमाउंट मिला है तो वो भी डिस्क्लोज करना है. किस में डिस्क्लोज करना है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डिस्क्लोज करना है. और अमाउंट भी डिस्क्लोज करना है जो भी वो पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एज रिक्वायर्ड बाय सेक्शन 182 सबसेक्शन 3. तो बेसिकली जो रिक्वायरमेंट कंपनी के ऊपर होती है डिस्क्लोजर करने की इन द पीएल, वो अब इलेक्टोरल ट्रस्ट के ऊपर हो जाएगी कि अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो डिस्क्लोजर करके दिखाएंगे. ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. ओके, let's come to the example. The Board of Directors of LM Limited incorporated in April 17 proposes to donate rupees 50,000 to a political party for the financial year 1920. The average net profits determined in accordance with the provisions of Companies Act 2013 during the two immediately preceding financial years are 20 lakh. Advise whether the proposed donation is within the powers of the Board of Directors of the company. सो यहाँ पर कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कब हुआ था, अप्रैल 2017 में. डोनेशन कब करना चाहती है, फाइनेंशियल ईयर 1920. सबसे पहले चेक करो कि क्या उसको एग्जेम्पशन के अंदर फॉल तो नहीं हो रही है. तो अप्रैल 17 मतलब 17-18 फाइनेंशियल ईयर के अंदर हुई थी. 17-18, 18-19, 19-20. ठीक है. अप्रैल 17 को हुई है इनकॉर्पोरेशन. ठीक है. और अभी तक एग्जिस्टेंस कितने साल की हुई है, अप्रैल 17-18, 18-19, 19-20 के अंदर ही कंट्रीब्यूशन करना चाहती है. मतलब अभी तक पूरे फाइनेंशियल ईयर्स देखें तो 2 फाइनेंशियल ईयर्स हो चुके हैं और तीसरा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. तो एग्जेम्पशन में फॉल कर गई क्या? हाँ. गवर्नमेंट कंपनी है? नहीं, गवर्नमेंट कंपनी नहीं है. कंपनी की जो एग्जिस्टेंस हुई है वो 3 फाइनेंशियल ईयर्स से कम की है, इसी वजह से वो एग्जेम्पशंस में फॉल कर गई. ठीक है. आंसर रीड करते हैं एक बारी से. तो इस केस में जो ये आपको अमाउंट दे रखा है नेट प्रॉफिट्स का, क्या इसकी आपको ज़रूरत थी? 81 कंफ्यूज करने की वजह से दिया हुआ है क्योंकि इस सेक्शन में तो कोई लिमिट है ही नहीं ना. इस सेक्शन में तो बोला हुआ है विदाउट एनी लिमिट आप कितना भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हो, बस ये कंडीशन है कि एग्जेम्पशन में फॉल मत करना. तो ये जो एवरेज नेट प्रॉफिट्स वाली लाइन दे रखी है ना, ये जस्ट कंफ्यूज करने के लिए दी हुई है कि आप फटाफट से एवरेज प्रॉफिट्स निकालो, 5% निकालो, चेक करो लिमिट आ रही है कि नहीं आ रही है और फटाफट से आंसर लिख दो कि हाँ ठीक है कर दो. इसी वजह से आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि सेक्शन 181 अलग है, सेक्शन 182 अलग है. सेक्शन 182 के अंदर एवरेज नेट प्रॉफिट्स की कोई बात नहीं दी है. इट इज़ इररेलेवेंट, इट इज़ जस्ट गिवन टू कंफ्यूज यू कि आप प्रोविज़न गलत लगा दो.
सबसे पहले इनकॉर्पोरेशन वाला देखा, एग्जेम्पशन होगी, बात खत्म, कुछ नहीं देखो, सीधा लिखो एज पर सेक्शन 182 सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एनी कंपनी मे कंट्रीब्यूट एनी अमाउंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू एनी पॉलिटिकल पार्टी except a government company and a company which has been in existence for less than 3 financial years. In the given case, LM Limited has been in existence for less than 3 financial years. Hence, it is not permitted to donate any amount to the concerned political party for the financial year 1920. ठीक है. Next example. Seahawk Cycles Limited is a company incorporated 4 years ago. तो exemptions में तो फॉल नहीं कर रही, ना ही गवर्नमेंट कंपनी है, ना ही 3 साल वाली कंडीशन आ रही है, तो एग्जाम्शन में फॉल नहीं कर रही, मतलब पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन कर सकती है टू एनी अमाउंट. करेक्ट. It has earned profits amounting to 5 lakhs, 8 lakhs, 11 lakhs respectively during the last 3 financial years. The board of directors of the company proposes to donate a sum of rupees 50,000 to a political party. Whether the proposed donation is within the powers of the board of directors of the company. देखो फिर से वही कंफ्यूज करने वाली लाइन दे दी. सेक्शन 182 के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि ये ओवरराइड करता है पूरे कंपनीज एक्ट को. तो कोई लिमिट दी हुई थी, जैसे फर्स्ट वाले में हमने अदर फंड के लिए भी लिमिट है, सबके लिए, फंड्स के लिए, चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन के लिए, सबके लिए क्या था, लिमिट थी. तो वो लिमिट क्या सेक्शन 182 पे लगेगी? नहीं लगेगी. क्यों? क्योंकि ओवरराइडिंग इफेक्ट आ रहा था. ये ओवर रूल करता है सारे सेक्शंस को, पूरे कंपनीज एक्ट को. इसी वजह से ये इररिलेवेंट चीज़ है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, इसको इग्नोर करो. फर्स्ट लाइन पढ़ी, पता चलेगा एग्जाम्शन में फॉल नहीं करा. फिर उसके बाद सीधा लिखो क्या बोर्ड के पास येस पावर है, उसको बस रेजोल्यूशन पास करना है मीटिंग के अंदर कि वो डोनेशन कर रहे हैं. So according to section 182 subsection 1 of the Companies Act 2013, a company except a government company and a company which has been in existence for not less than 3 financial years can make political contributions directly or indirectly to any political party. Further, the contribution shall be made by the company only after passing a resolution at a meeting of the board of directors authorizing such contribution. In view of the above provisions, Seahawk Cycles Limited can contribute the said amount of rupees 50,000 to the concerned political party. However, it needs to pass a board resolution authorizing making of such contribution at a meeting of the board of directors. I hope you all are clear with this section. All the provisions are clear to you. Okay. So let's move on to the last section for today's video, which is section 183. It is given on page number 3.39 of the module. Okay. I hope you are enjoying the sessions together with me because I am enjoying it a lot. Okay. Section 183, power of board and other persons to make contributions to National Defence Fund etc. Board की power and other persons किस लिए contributions किसको करना है? National Defence Fund etc. Section 183. Section 183 of the Act empowers the board and other authorized persons to make contributions to the National Defence Fund etc. as described below. Contribution of amount to National Defence Fund या फिर other fund as approved by the central government. Approve किसने किया हुआ इन funds को? Central government ने किया हुआ है. अब हम उनको contribution करने वाले हैं. Okay. No limit. Contribution to the National Defence Fund or any other fund approved by the central government for the purpose of National Defence Fund can be made without any limit. So this is similar to what? Section number 182. कोई limit नहीं है. Next, exercise of power. The power to make such contribution shall be exercised by the board of directors of the company या फिर any person or authority exercising the powers of the board of directors or of the company in the general meeting. So board of directors of the company के पास power है या कोई भी person या authority जो ये powers exercise कर रही है board of directors की या फिर पावर्स को एक्सरसाइज करने की पावर दे रखी है कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर कंपनी की जनरल मीटिंग में जो भी पावर्स एक्सरसाइज कर सकते हैं उसकी पावर दी है, तो वो लोग भी इस पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, ओवरराइडिंग इफेक्ट. Section 183 has an overriding effect that the contribution may be made notwithstanding anything contained in Section 180, 181, 182. मतलब 180 के अंदर कोई रेस्ट्रिक्शन लगाई थी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
181 हमने आज ही पढ़ा चैरिटेबल से रिलेटेड, उसके अंदर जो लिमिट लगा रखी थी वो भी हम उसको ओवरराइड करते हैं। 182 के अंदर जो 2 कंपनीज को एग्जेम्पशन थी कि वो 182 वाला नहीं लगा सकती, वो वाली चीज़ भी इसमें आप नहीं लगाओगे प्रोविज़न गलती से भी। पूरे के पूरे कंपनीज एक्ट को ही बेसिकली ये ओवर रूल कर रहे हैं। सो इसका भी ओवर राइडिंग इफेक्ट है इसका सेक्शन 183 का। साथ ही साथ ये मेमोरेंडम आर्टिकल्स को भी ओवर रूल कर रहे हैं। वहाँ पर मेमोरेंडम और आर्टिकल्स नहीं लिखा था, वहाँ पर मेमोरेंडम और आर्टिकल्स नहीं लिखा था, यहाँ पर मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को भी ओवर रूल कर दिया कि आप मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के बियॉन्ड भी ये सेक्शन ही प्रिवेल करेगा। मेमोरेंडम आर्टिकल्स में अगर कुछ लिख भी दिया ना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेक्शन 183 शैल प्रिवेल ओवर ऑल। ओके, next, disclosures in the profit and loss account. So every company shall disclose in its profit and loss account the total amount or amounts contributed by it to the National Defence Fund या फिर any other approved fund during the financial year to which the amount relates. So profit and loss में आपको disclosure करना है, जितना भी आप amount contribute करते हो, जिस भी financial year में आप contribute करते हो, उस चीज़ को आप disclose कर दो profit and loss में कि आपने ये contribution किया है. Okay, so I hope you like this content. Section 181, 182, 183, and if you liked it, do give it a thumbs up because it gives some motivation to us when we make videos. All of us who make videos, they get some motivation and appreciation feel होता है कि कोई thumbs up दे रहा है मतलब they are liking the content. And अगर आपके कोई भी suggestions हैं तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए. I'll try to incorporate them in the upcoming videos जिससे कि वो improve हो पाए और सबके लिए benefit हो पाए. I am very thankful to those who give me the actual feedback. जैसे कि किसी ने मुझे बताया था कि वीडियो क्वालिटी सही नहीं आ रही, तो I've tried it कि मैक्सिमम बेस्ट पॉसिबल जो मैं कर सकती हूँ इस ऐप के थ्रू मैंने वो ट्राई करी है. आई एम नॉट श्योर कि अभी भी आपको जब मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी तो कैसी दिखने वाली है, बट टू मी इट इज़ परफेक्टली फाइन. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि क्लियरली रिकॉर्ड हो रहा है. स्टिल इफ़ देर इज़ any suggestion from your side, do give it to me. I've tried speaking a little louder in this video because I got this feedback also कि थोड़ा सा audible नहीं है, loudly बोलना चाहिए, थोड़ा आवाज़ कम आ रही है. So I tried to speak a little louder in this video. Still if you find कि थोड़ा और बोलना पड़ेगा तो डू लेट मी नो. ऑल्दो इससे ज़्यादा बोलना पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि मैं ऑलरेडी शाउट कर रही हूँ, बट स्टिल आई विल ट्राई. अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं. अब पहले की वीडियोज़ के लिए यू मे यूज़ दी हेडफोन्स और ईयरफोन्स जिससे कि आपको वॉइस क्लियर हो, क्योंकि उसको यूज़ करते हैं तो इवन आई हैव फेल्ट कि अच्छे से आवाज़ आती है, प्लस कॉन्सेंट्रेशन अच्छे से होता है. कॉन्ट्रीब्यूशन बोल रही थी, सॉरी, कॉन्सेंट्रेशन बहुत अच्छा होता है क्योंकि जब हम वैसे सुन रहे होते हैं ना तो कहीं हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है. बट जब हेडफोन्स या ईयरफोन्स के थ्रू हम सुनते हैं तो हमारा कंट्रीब्यूशन बोल दिया, कंसंट्रेशन हमारा इसी पर रहता है जो भी हम पढ़ रहे होते हैं. तो आई सजेस्ट कि जब आप सुन रहे हो इसको ईदर वाइल वॉकिंग ईदर वाइल डूइंग सम अनप्रोडक्टिव वर्क, तो आप इसको हेडफोन्स के थ्रू ही सुनो, वैसे मत सुनो क्योंकि कहीं ना माइंड डाइवर्ट हो जाता है और फिर डायरेक्टली ब्रेन में नहीं जाता. तो डायरेक्टली ब्रेन में जाएगा तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, तो दैट विल मेक अ डिफरेंस फॉर यू. ओके, सो अभी और बड़ा नहीं करते वीडियो को, लेट्स वाइंड इट अप. आई होप यू एन्जॉयड इट. इफ़ यू लाइक्ड इट, डू गिव इट अ थम्स अप. इफ़ यू फाइंड कि ये यूजफुल रहेगा तो डू शेयर इट विद समबडी एंड kindly subscribe to my channel if you really like it, and you may press the bell icon also so that you can notified whenever I'll upload a video. Okay, so that's all for today. Bye bye, have a nice day everyone.